Follow. अच्छा तो तुरंत आ जाएगी सर। Teacher read it out in the class. ठीक सर। Very good. Which period it was read out and by whom? Amit sir read it out. Yes, sir. Okay. What was it about? Just raise your hands, then I'll ask you to answer. Yes, Tanish? Sir, it was about cleanliness and the 3 hours. 3 hours. Yes, sir. What is 3 hours? You sit down. Anyone else? 3 hours that I mentioned. Yes, what's your name? Sultana Singh. Tanya. Please tell. Sir, recycle, reuse and reduce, recycle, reuse. Recycle, reduce and Reuse. reuse. Good. I'm happy that the letter was shared with you, and I hope you have understood what I've tried to say in that. Otherwise also, even if I have not written the letter to you, I hope you take care of cleanliness. Can anyone tell me why cleanliness is important? In my letter, I have written cleanliness of various types, in various places. What are those? First one is? Yes? School comes a little later. Before that, something else is there. Sir, Yes? our surroundings like. Before that, Sir. before our surroundings. Sir. Okay, you give the answer. So, public place. Public places will come a little later, beta. Yes? First one? Sir, ourselves. Ourselves. सबसे पहले हमें किसकी स्वच्छता का ध्यान रखना है? अपनी स्वच्छता का। ourselves. हम एकदम गंदे होंगे, फिर हम गंदगी को कैसे दूर करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना? तो सबसे पहले can one of you give certain tips like how we can keep ourselves clean? अपने आप को स्वच्छ कैसे रखें? हाँ बताओ बेटा, सबसे लास्ट में जो हो अपना नाम बताओ। Sir, वीर प्रताप सिंह. वीर प्रताप सिंह, बताओ बेटा। Sir, by taking regular baths and सबसे पहले सुबह उठ के क्या करना है? सीधा नहाएंगे? brushing. Sir, brushing our teeth. ब्रशिंग, ओके, ब्रशिंग, फिर नहाना, और उसके बाद और क्या क्या जरूरत है? और बताओ, दूसरे कुछ बताओ। यस? So, wearing clean clothes. Wearing clean clothes. Okay? Who cleans our clothes at home? Mother. Normally mothers are doing that. है ना? Yes, sir. और उसको फिर धोने के बाद आप पहन लेते हो डायरेक्ट? No, sir. नहीं। फिर क्या होता है? ड्राई तो करते ही हैं, और बस ड्राई के बाद पहन लेते हो? ड्राई के बाद में भी कुछ होता है ना? आयरनिंग होती है, उसको सब मम्मी पापा करते हैं ना? Yes, sir. तो आप उस ड्रेस को जब स्कूल पहन के आते हो, यूनिफॉर्म को, तो उसको घर कैसे लेके जाते हो? साफ सुथरा या गंदी करके लेके जाते हो? कुछ लोग बता रहे हो डर्टी भी करके जाते हो ना? तो आपको ध्यान रखना चाहिए ना उसका? तो देखो, when we talk of ourselves, so many things are coming out. First and foremost, you should get up, brush your teeth, okay? Then take bath, wear fresh clothes, and if you are coming to school, you also in the school should take care of your clothes, so that you go back home also as you have come to school. Right? Then we come to our surroundings. Surroundings, first and foremost, surrounding for school students is school itself. So are you taking care?
at times I find few of you are littering. Abhi just during the break time I saw someone from class 4 having tiffin. उसने टिफिन को अपने पॉली बैग से निकाला, पॉलीथीन से निकाला और पॉलीथीन को उसने जहां बैठा था वहीं पर फेंक दिया नीचे। आपकी सब्जी गिर जाती है या कुछ और गिर जाता है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास स्वीपर्स हैं, स्वीपर साफ कर देंगे। हम भी चाहते हैं कि आप सब्जी को भी साफ करो, लेकिन पॉली बैग, रैपर्स, कैन यू अवॉइड पुटिंग देम ऑन द फ्लोर? कोई है जो चाहता कि नहीं हम वो नहीं कर सकते, हम वहीं पर फेंकेंगे, ना खाएंगे? कोई है ऐसा? बताओ। है तो हम उसको आज परमिट कर देंगे करने के लिए, आगे से आप कर सकते हो। जो ऐसा करना चाहता है, आई विल परमिट हिम। यू कैन गो ऑन थ्रोइंग योर रैपर्स, पेपर, जहां तहां आप फेंकना चाहोगे। आज परमिशन चाहिए तो ले लो। चाहिए किसी को? किसी को नहीं चाहिए? अरे, so I should be happy or unhappy for this? Happy. Okay, I'm very happy that you don't want this permission. Good. लेकिन फिर इस पे अमल करना है बेटा, ठीक है? अगर आप बैठ के यहाँ पर मेरी बात सुन रहे हो, तो you have to start following these things. No littering inside the classrooms, no littering in the corridors, school ground, in these places. Then comes third that I have written is, एक तो स्कूल हो गया, घर तो साफ रहता ही रहता है, घर में मम्मी का डर रहता है ना, है ना? घर में पोछा लगता है तो आप चलते हो उस पे? चलते हो? Not allowed. और अगर चल लिया तो क्या होता है? डांट पड़ती है। क्यों नहीं चलने को बोलते, बताओ, उसका रीजन बताओ। What is the reason why you are not allowed to walk when the floor is mopped? कोई बताएगा? हाँ, बताओ। When we will walk, that floor will get dirty. Dirty. Very good. You all know the answers. Yes, beta. Or we will slide on this. Slide. Yes, that danger is also there. एक तो फ्लोर गंदा होगा और ऊपर से देखो उसने बहुत अच्छी चीज। What's your name? Ashmita. अश्मिता। अश्मिता ने भी हमको बताया कि we may slip also. वेरी गुड बेटा। तो स्कूल में जब कहीं पोछा लग रहा होता है, यू अवॉइड वॉकिंग ऑन दैट इन दैट एरिया, और आप लोग दौड़ पड़ते हो उसके ऊपर से? कुछ लोग दौड़ भी जाते हैं ना, फिर दौड़ते हैं तो क्या होता है, वहां पर जूतों के निशान बन जाते हैं, बनते हैं ना? तो जैसे हम स्कूल घर में फॉलो करते हैं, वैसे स्कूल में भी कर सकते हैं ना? Good. So self-cleanliness, then your surroundings comes to school, and then the third area that we have to take care of is public places. और public places कौन-कौन सी होती हैं जहाँ आप जाते हो? हाँ बेटा, पीछे जो बैठे वो बताओ। What's your name? Sun what? Okay, हाँ बताओ बेटा। Sir, restaurants, hotels. Restaurant, Hotels. shopping complex, Parks. bus stand, park, railway station. Stadium. Roadside. Parties जाते हो? How many of you, after eating in parties, throw your plates and bowls in the dustbin? Tell me that. Wow, very nice. That's good. लेकिन फिर हमारी पार्टी वाली जगहें गंदी क्यों होती हैं बेटा, जब आप सबके सब डस्टबिन यूज कर रहे हो? पार्टीज में जाता हूँ मैं तो नहीं देखता हूँ ऐसा, जहाँ आइसक्रीम खाई वहां उसका पेपर प्लेट फेंक दी, जहाँ हमने कुछ खाया फेंक दिया, करते हैं ना सब। अच्छा, इस क्लीनलीनेस के साथ में हम एक चीज और जोड़ सकते हैं। पार्टी में अगर हम आ गए हैं तो बैठो बेटा, पार्टी में अक्सर what we see is people throw their plates and the smaller plates here and there. They don't use the dustbins. One more thing that they do is lot of wastage.
आपको जितना खाना है आप उतना लीजिए, फिर भूख है और लीजिए, फिर भूख है और लीजिए, कर सकते हैं ना? कोई चीज आपको अच्छी लगी आप उसको दोबारा ले लो, कोई मना नहीं करता, लेकिन एक ही साथ सारी प्लेट भर लेना और फिर थोड़ा सा खा के उसको डस्टबिन में डाल देना, इट्स नॉट गुड, वी आर वेस्टिंग द फूड। तो आज के बाद मैं उम्मीद करता हूं यू विल बी मोर कॉन्शियस अबाउट द क्लीनलीनेस फॉर योरसेल्फ, you take care of your dresses, your own body, and then school and public places. Just now we have spoken about the physical part of cleanliness. There is a mental part of cleanliness also. Can anyone guess what is it? Yes, beta last वाले बताओ, अपना नाम बताओ. The mindset. Mindset. Okay, very good. हमें अपने माइंड से भी क्लीन होना चाहिए ना? Yes, sir. तो उसके लिए क्या करना होगा? हम लोग असेंबली में क्या डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं? To keep our minds clean, what should we do? सात्विक mood. Okay, very good. सात्विक मोड में रहना चाहिए. सात्विक मोड के लिए हमें अच्छे विचार आने चाहिए. तो अच्छे विचार कहाँ से आते हैं? Reading good books. By reading good books. Very good. By having good friends. Okay. By not thinking anything bad for anyone. Okay, किसी के बारे में भी बुरा विचार नहीं रखना. हमें अपनी क्लीनिंग अंदर से भी करनी होती है, बाहर से भी करनी है, अंदर से भी करनी है. तो ध्यान रखोगे ये सब चीजों का? Yes, sir. Very good. I would request Ratnesh sir also to speak to you about cleanliness. हमारे ख्याल से पिछली बार भी हम लोगों ने सफाई पर इस तरह से बच्चों को संबोधित किया था, और मैंने एक बात कही थी जो मैं फिर से दोहराऊंगा. उसमें आप लोग नहीं थे, दूसरे बच्चे थे. मैंने कहा था कि प्रकृति में, नेचर में देखोगे कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, जिसको हम नेचर कहते हैं, जिसको ईश्वर की जो रचना है, इतनी बड़ी दुनिया, इसमें भी तुम लोगों ने देखा होगा कि सफाई का बहुत ध्यान रखा जाता है. एक कहावत है, कहावत ही नहीं वो सच्चाई है, कि कुत्ता भी कहीं पर बैठता है तो अपनी पूंछ से उस जगह को झाड़ करके बैठता है. ये एक तुम लोगों ने देखा होगा, फिर से देखना एक बार, कि कहीं को देखोगे कि कुत्ता अगर कहीं पर बैठता है तो सूंघेगा और पूंछ से थोड़ी सी झाड़ लेगा उस जगह को, मतलब सफाई कर लेगा, तो वहां पर वो बैठेगा. तो सफाई का जो संदेश है वो हमें नेचर से भी मिला हुआ है, प्रकृति से भी मिला हुआ है. तुम लोग डिस्कवरी में देखे होंगे, दिखाते हैं कि जंगल में झाड़ू बुहारू कौन करता होगा, उतनी गंदगी हो जाती है, तो जंगल की सफाई कौन करता है? तो आंधी आती है बड़ी तेज, आंधी आती है ना, आंधी आने से सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है नेचर में. जितने पीले पत्ते रहते हैं सब झड़ जाते हैं, फालतू पत्ते वो अपने से बेचारा नहीं झाड़ सकता, तो उसके लिए झड़ जाते हैं, फिर आंधी से उड़ भी जाते हैं और एक जगह जमा हो जाते हैं, जिससे कि सब कुछ देखने में अच्छा लगने लगता है. नदियाँ जब वर्षा ऋतु आती है तो नदियों में बाढ़ आ जाती है, बहुत गंदा पानी, बहुत ढेर सारी गंदगियाँ उसमें से बहने लग जाती है, लेकिन वे गंदगियाँ धीरे धीरे नदियाँ एक जगह को पहुंचा देती है, और उसी नदी का पानी तुम देखोगे एकदम साफ सुथरा, फिर पीने लायक हो जाता है, नहीं तो एकदम गंदा रहता है. इसका क्या मतलब हुआ कि हमें नेचर से, प्रकृति से भी सफाई की शिक्षा लेनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि सब कुछ से कुछ ना कुछ सीख मिलती है. चींटी से मिलती है, हाथी से मिलती है, घोड़े से मिलती है, कोई भी जो कुछ भी है उससे हमें कुछ सीख मिलती है कि यह जो कर रहा है, जो भी प्रकृति में है, वह एकदम सही रास्ते पर जा रहा है. हम आदमी क्योंकि अपने ढंग से सब कुछ बनाते हैं, इसलिए हम लोग उसमें गंदगी भी कर देते हैं. लेकिन धीरे धीरे हमारे सभी लोगों ने समझा, हम सब ने समझा कि
अगर सफाई हम नहीं रखेंगे तो हमें तरह तरह की बीमारियां घेर लेंगी, तरह तरह की बीमारियां। हम जाते हैं अभी, उस समय भी हम लोग, जिस समय कोरोना का था तो था ना कि जितनी बार भी हम खाने के लिए कुछ हाथ से खाने की बात करें तो जाकर जल्द से जल्द हाथ को साबुन से धोएं या धो करके बढ़िया से पोंछें। अभी भी ये हम आप लोग को करना चाहिए। हमारे ख्याल से निश्चित रूप से आप लोग ये करते होंगे कि यहाँ से घर जाने के बाद निश्चित रूप से घर साबुन से हाथ जरूर धोते होंगे, धोना भी चाहिए। दूसरा, सर ने आपको बताया अपने विद्यालय की सफाई, घर के बारे में, तो वहाँ भी तुम लोग गंदा अगर करते हो तो माता पिता बीच में मना करते हैं कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन विद्यालय में सर ने कहा यहाँ अभी भी हमें देखने को मिल रहा है कि इतना कुछ होने के बावजूद बहुत सुधार हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन खाने के समय में खास करके जिसमें आप लोग लंच ब्रेक होता है उस समय खेलने के मूड में होने के कारण जहाँ तहाँ आप लोग गंदगी फैला देते हैं, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है। आपने कहा कि हमको सब जगह का ध्यान रखना चाहिए, जो कि सामाजिक जगह है, सोशल प्लेसेज हैं, कुछ ऐसी जगह जैसे प्लेटफॉर्म की बात हुई, तुम लोगों ने बताया कि रेलवे प्लेटफॉर्म की भी सफाई, कहीं जिसकी इच्छा होती वही कहीं पर थूक दिया या कहीं पर टॉपिक खोला उसका रैपर गिराते हुए चला गया, उसको कोई मतलब नहीं है। ट्रेन के अंदर जो कुछ भी खाते हैं वहीं पर गिरा देते हैं, ऐसा देखा होगा तुम लोग। और लेकिन जब तुम कुछ नहीं बोल करके भी केवल एक बार उससे नजर मिला लो जिसने ऐसा किया, तो उसके मन में ये बात आएगी और वो निश्चित रूप से उठा करके उसको जा करके जो कचरे का डब्बा है, हर डब्बे में, हर बोगी में कचरे का डब्बा रहता है दोनों साइड, वहां ले जा करके उसको रखेगा। तो तुमसे प्रेरित हो जाए, तुमको बोलने की भी जरूरत नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया। इसलिए सफाई जो है मन में और शरीर में और अपने आसपास रहने की जगहों की होनी चाहिए, ऐसा हमारे अंदर ध्यान रहे। अभी किसी ने कहा सात्विक विचार होने चाहिए, तो हमारा मन साफ रहेगा। हम देखो जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर कितना साफ सुथरा रहता है, हम खुद वहाँ पर कोशिश करते हैं कि जरा भी गंदगी न जाए। किसी दुनिया के कोई भी मंदिर, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, गिरजाघर हो, कहीं भी जाओ, कहीं जूता अलाउ नहीं है कि आप जूता पहन करके अंदर चले गए, ऐसा नहीं है। क्यों है जूता अलाउ नहीं है कि क्या मतलब हुआ? मतलब जूते के साथ डस्ट है, गंदगी रहेगी। हो सकता है जूते में चिपकी हुई हो गंदगी हो, वहाँ इतना साफ सुथरा है वहाँ चिपक जाए। इस तरह से आप उन सभी चीजों को अपने ध्यान में आप लोग रखें। अभी तो आपने सर ने कहा कि हम लोग जितने भी हैं सब ने हाथ उठाया कि हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं। हम आशा करते हैं कि इसको आप अपनी कार्यशैली में लाएं। जो आप करते हैं, जो काम करते हैं, जो भी जैसे खाने के लिए भी, घर में भी, तो वहाँ भी ऐसा नहीं कि जहाँ तहाँ कुछ गिरा दिए। और अगर कहीं गिरा हुआ है, जैसे स्कूल में ये कोई ऐसा गिरा हुआ, इतनी गंदगी, जैसे कि सर ने कहा कि अब सब्जी गिरी है तो ऐसा नहीं कि अब आप लोग उठाता चले सब्जी, वो गीला कचरा है तो उससे आपको दिक्कत हो जा सकती है। लेकिन कहीं अगर आप कागज का बड़ा टुकड़ा आप देख रहे हैं ऐसे मचोड़ करके कहीं पर फेंका हुआ है, तो ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि उसको उठा करके डस्टबिन में डाल दें। यह भी यही हुआ अपने मन का, कि हमारे मन में ये सफाई होनी चाहिए कि हम कहीं भी अपने जहाँ पर हम जिसका हम व्यवहार करते हैं, जिसका यूज करते हैं, वहाँ पर अगर हमको कहीं इस तरह का कचरा दिखे जिसको कि हम उठाकर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा कचरा हो जिसमें बहुत सारी गंदगी हो तब उसको उठा के रखो। इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना ही चाहिए, जिससे कि हमारा मन, तन और हमारा समाज सब कुछ स्वच्छ रहेगा और दुनिया हमारी जो सराउंडिंग से हम जितना चारों तरफ देखते हैं वह सब बहुत खूबसूरत सुंदर दिखने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद। माननीय प्राचार्य महोदय, वरिष्ठ शिक्षक डॉक्टर गणेश सिन्हा सर एवं मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने छात्रों, स्वच्छता का जो विषय है वह हमारी भारतीय संस्कृति और वेदों में एक समाहित श्लोक से मैं उसका प्रारंभ करना चाहूंगा।
हमारे भारतीय संस्कृति में पूजा पाठ अनुष्ठान की जो शुरुआत होती है वह एक श्लोक से होती है। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षो शवाह्यभ्यां शुचि। अर्थात पवित्रता, स्वच्छता। किस तरह? मनसः वाचः कर्मणा, मन से, वाणी से एवं कर्म से। मन से जब हमारे मन में स्वच्छ विचार, सुंदर विचार, सात्विक सकारात्मक विचार हैं, हर किसी के बारे में हम सकारात्मक, हर किसी आदमी में नकारात्मक सकारात्मक देखा जा सकता है और मौजूद होता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम उसके नकारात्मक पहलुओं को ही अपने मन में बसा लेते हैं, उसकी छवि, नकारात्मक छवि अपने मन में कि आदमी ऐसा होगा ही। कभी कभी नकारात्मक व्यक्ति को भी हम सकारात्मक बना लेते हैं कि बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे मन में जैसे विचार आएंगे, अगर हम नकारात्मक होंगे तो नकारात्मक विचार को समाहित कर लेंगे, तो सकारात्मक विचार अपने सकारात्मक हों। जैसे प्रकृति, नेचर को हम कुछ दे सकते हैं क्या? हम क्या कुछ हरा भरा बना सकते हैं क्या? क्या उसकी गंदगी को हम दूर कर सकते हैं क्या? क्या कहीं फूल बढ़िया लगा हुआ है, क्या उसको तोड़ दें क्या? कभी कभी ऐसे बच्चों के मन में आ जाता है चलो तोड़ दो, ऐसे जाते वक्त भी हाथ ऐसे मारते चले जाएंगे कि उसको नुकसान पहुंचा दो। और यदि एक अच्छा सकारात्मक वाला विचार वाला व्यक्ति होगा तो उसे और बेहतर तरीके से उसकी प्रशंसा करेगा, उसके बारे में चर्चा करेगा और पहले सोचेगा कि इसको हम और कैसे, इसको खाद की जरूरत है कि पानी की जरूरत है, यदि कुमला रहा है तो पानी दे दे इसको, है ना। तो ये हमारे मन में किस तरह के विचार हो, तो मनसा स्वच्छता। फिर वाणी, आज स्वच्छता के साथ साथ स्वच्छ वाणी की भी आवश्यकता है। कभी कभी आप लोग जब बड़ी कक्षाओं में जाते हैं और हो सकता है आप लोग कभी रफ बोलने के आदि, जैसे बच्चों को अभी क्या कर रहे हैं, ये शब्द मैं अधिकांश सुन लेता हूं। इस तरह की भाषा जो होती है वो एक नकारात्मक विचार वाले के लिए तो ठीक है, वो बोलता होगा ऐसा, लेकिन एक संभ्रांत परिवार में यह भाषा सार्वजनिक नहीं कहा जा सकता। यह इसे साहित्य की भाषा नहीं कही जा सकती। मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी कई, गाली देना, अपशब्द बोलना, है ना, किसी के बारे में नकारात्मक विचार प्रकट करना, ये सभी चीजें जो है वाणी के अंतर्गत आती हैं। कि हमें हमारे जो वेदों में, शास्त्रों में कहा गया कि हमारे मन में जो वाणी हमारी हो, स्वच्छ हो, पवित्र हो, सुंदर हो, सौम्य हो वाणी। फिर बात आती है कर्म की। हमारे मन में या वाणी में जो विचार चल रहे होते हैं उसी अनुसार हम कर्म भी करते हैं। जैसा हम सोचेंगे, बोलेंगे, उसी तरह कार्य भी करेंगे। कई जगह ऐसा देखा जाता है कि एक स्वच्छ छवि वाला व्यक्ति वहां पर पहुंचा तो उसे यह बात जरूर समझ में आ जाती है कि यहां पर हमें क्या करना चाहिए, हमारा क्या योगदान हो सकता है। और जब हम वहां पर पहुंचेंगे, मान लीजिए कोई गंदगी पड़ी हुई है, क्या हम उसको खुद हटा सकते हैं, या हो सकता है कि वो हमारे हटाने लायक ना हो, ऐसा भी होता है, तो उसमें हमारी पहल क्या हो सकती है। कई बार मान लीजिए मैं गया और मुझे दिखा कि नाली भरी हुई है, वो हमारी बस की बात नहीं है कि मैं फावड़ा लेकर के और नाली साफ कर सकता हूं, लेकिन क्या कर सकता हूं वहां पे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, एक आवेदन तो नगर पालिका को लिख सकता हूं, ये संबंधित अधिकारी को लिख सकता हूं कि सर हमारे यहां आसपास में ऐसी गंदगी है ना। तो वो जो हमारा कर्तव्य है वहां हमारा ये कर्म नहीं था कि हम उसको नाली साफ करें, पर करने के लिए कौन सी अथॉरिटी उसको साफ करेगी, उसको सूचित करना और
उसकी उचित देखभाल के लिए जिम्मेदार अधिकारियों से चर्चा करना, यह तो मेरे बस की बात है, ये मैं कर सकता हूं। तो इस तरह के कर्मों की भी आवश्यकता होती है कि स्वच्छता, मान लीजिए कहीं ऐसे कोई दीवार है, उसमें हमें कुछ फूल पौधे बनाने की आवश्यकता या उसकी पुताई रंग रोगन करवाने की आवश्यकता समझ में आ रही है, तो संबंधित जगह या हमारी जो पहल है वो अपने स्तर से हम करेंगे, है ना। तो इस तरह से कर्म भी करने चाहिए, है ना। जो हमारे बस की बात है कि हम गंदगी हटा सकते हैं खुद हटा दें, जो नहीं हटा सकते वो अथॉरिटी को सूचित करना, है ना, कर्तव्य है मेरा, वो भी करते रहे। तो इसी तरह जो शास्त्रों में कहा गया कि तभी जाकर के जो जिसकी हम परिकल्पना करते हैं, कई बार होता क्या है कि नगर पालिका या आप उदाहरण के लिए जैसे एनसीएल के ही सफाई कर्मचारी हैं, उदाहरण के लिए जरूरी नहीं कि एनसीएल का जो बंदा है सफाई कर्मचारी उसको हर जगह के बारे में जानकारी हो, कहां गंदगी है कहां नहीं है। हो सकता है जहां जिस जगह मैं देख रहा हूं वहां तक उसकी नजर ना पहुंची हो, तो हम उसको इंगित कर देंगे भाई फलाने जगह भी है, वहां पर भी जाकर थोड़ा देख लेना। अगर बोलने से हो जाता, लिखने से हो जाता तो आदमी लिख भी देता कि फलाने जगह ऐसी गंदगी है ना। तो ये हमारा कर्म हुआ, है ना, कि उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। तो जो शास्त्रों में कहा गया कि मनसा वाचा कर्मणा, यदि जब मन वाणी और कर्म के साथ ही कोई कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से वो परिकल्पना साकार होगी, सिद्ध होगी। तो इसी तरह से स्वच्छता की जो गतिविधियां होती हैं, हमारे परम सम्मानित प्राचार्य महोदय आपको असेंबलियों में या अन्य इस तरह के आयोजनों में जरूर सूचित करते रहते हैं, और मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है कि आप निश्चित रूप से इस स्वच्छता अभियान को बहुत अच्छे ढंग से साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। Sinha sir and Dr. N.P. Mishra sir for sharing your beautiful thoughts, ideas, which I'm sure you all must have heard them attentively and must have understood the suggestions they have given you, and you will implement them in your lives. You will do that, children? Yes, sir. Sure. Can anyone come and tell what you learned from this session? 2 or 3 points, not long ones, just 2 or 3 points. Can someone stand up and tell your name and what you learned? 1 or 2 points. Sorry, Pratap Singh. वहीं से बोल दो बेटा. Sir, we learned that we have to make our mindset clean and good thoughts, and we should learn from our nature and surroundings that if they want to teach us that we should keep clean our surroundings, then we should also clean our surroundings. Very good, excellent. और कोई? Yes, Tanish. Sir, we learned that we have to first of all keep our mindsets clean. First, we have to prioritize our cleanliness. Then we go to public places, surroundings, and schools. Very good, very good. And yourself, what's your name? So first, we have to clean ourselves. Then we have to clean public places like park, and then we have to clean the school. Very good. Anyone from among the girls? आप बोलो बेटा अपना नाम बताओ. Aditya Raj Mishra. Okay. So for keeping our surroundings clean, first of all we have to keep our mindset also. Okay. That has already been conveyed. Anything new that your friends have not conveyed? Yes, beta. So we have to clean our mind first and clean our surroundings, and we should be always helpful to others and convey our points to others that we have to keep our surroundings and each and every place clean. Excellent, excellent. Yes, one more point you can share. Last point we'll take from you. Yeah. Sir, that if we are not able to clean the thing, we should tell another one Report. so that You should learn to bring it to the notice of those who can get it cleaned. Okay? Very nice. You have all picked up these points. One more thing I would like to end with is few of
not all, have the habit of spitting. हम थूकते रहते हैं इधर उधर, है ना? थूकने की आदत जो होती है वो आवश्यक होती है जब हम सुबह when we are in the washroom, when we are brushing our teeth, है ना? उसके अलावा हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए. We should treat our mother earth. हम इसको मदर अर्थ कहते हैं ना, धरती माता कहते हैं. तो धरती माता पे हम आवश्यक हमें ये चीज हमें जो थूकने वाली आदत है कभी नहीं करनी चाहिए. ठीक है? तो लेट अस ऑल स्टैंड इन आवर प्लेसेस और छोटी सी प्लेस लेते हैं. चलो ऑन द स्पॉट वाली, कोई लिखित प्लेस नहीं है. राइट हैंड आगे करो सभी एंड यू विल रिपीट व्हाट आई एम सेइंग. आई विल से आई, देन यू टेक योर नेम एंड देन विल कंटिन्यू. आई, this is Thakur here. Take the pledge. That I'll keep. Myself clean. My school clean. All the public places clean. And I'll help. My country. To become clean. In future. Thank you. Jai Hind.